Okay, we just spoke about what we did last week. We talked about the three financial statements, so income statement or balance sheet, and today we are moving on to cash flow. So for new firms, cash is king. कैश बहुत ज़रूरी है नई फर्म्स के लिए. So कैश फ्लो है क्या? इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन. आपकी कंपनी के अंदर या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या आपकी ज़िंदगी के अंदर या आप जब हॉस्टल में रहते हैं तो तब भी आप कैश फ्लो मैनेज कर सकते हैं. सो इट इज़ मूवमेंट ऑफ कैश इन एंड कैश आउट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम. ठीक है. सो आपने अगर अपना महीने का कैश फ्लो देखना हो, स्पेशली द हॉस्टलाइट्स, तो आप कितना कैश आ रहा है और कितना निकल रहा है एक महीने के अंदर, that is cash flow. So it's a very basic statement. लेकिन एक छोटे बिजनेस के लिए कैश बहुत ज़रूरी होता है सर्वाइव करने के लिए. ठीक है. सो यू मस्ट हैव कैश एंड देयरफॉर यू मस्ट बी एबल टू प्लान दैट कैश. एक टीचर यूएस में टीचर है, वो कैश फ्लो के बारे में ये लिखता है बोर्ड के ऊपर. ठीक है. तो आप में से कौन बताएगा कि ये क्या बन रहा है? YCF, योर कैश फ्लो, IMITYM. हाँ जी, कोई बताए मुझे क्विकली. हाँ जी, YCF से बनता है योर कैश फ्लो. आगे कोई तो गैस मारे. योर कैश फ्लो इज more important. Anyone? Then your mother. Than your mother. Absolutely right. Your cash flow is more important than your mother. Excellent. I think you're the first one who has actually said it right. ठीक है. सो आप सोचें कि कितनी इम्पोर्टेंस है इस कैश फ्लो की. सो कैश फ्लो के हवाले से मैं आपको जल्दी से एक छोटी सी वीडियो दिखा दूं एंड देन वील मूव ऑन टू एग्जांपल्स आल्सो. ठीक है. सो हियर वी गो. Cash flow refers to the movement of cash into or out of an account, a business, or an investment. When cash inflows exceed outflows, this is generally considered to be a sign of good financial health, both for individuals and companies. Ed makes his living running Ed's Carpets. For Ed, cash flow is essential to the survival of his business as well as his personal finances. Having ample cash on hand ensures that Ed can pay his employees, his creditors, and himself on time, keeping the business afloat. The same goes for Ed. He needs enough cash in his personal bank account to pay for his house, his car, and other personal expenses. Whether we are talking about Ed or his business, there are generally three types of cash flows. 1. Operational cash flows refer to cash received or spent as a result of a company's business activities. For example, a business like Ed's Carpets brings in cash by selling carpets and sends cash out to pay employees and suppliers. Similarly, Ed pays himself a salary, providing cash flow to his personal account. Cash will flow out to pay for his expenses such as food and housing. 2. Investment cash flows refer to cash received or spent through investing activities, basically the purchasing and selling of assets that will help grow the business, or in the case of Ed, assets that will help increase his net worth. 3. Financing cash flows refer to cash received through debt or paid out as debt repayments. For a company, issuing stock, paying down debt, and repurchasing shares would count as part of financing cash flows. For Ed, financing cash flows include any cash coming from loans or other types of debt, as well as payments going to pay down debts. If Ed's business comes up short on cash and is unable to pay its obligations, it will experience a cash flow crunch. To avoid insolvency, Ed will have to arrange some type of financing or bridge loan.
A similar situation in Ed's personal accounts would also have disastrous effects that could lead to personal bankruptcy if the cash flow crunch persisted. For this reason, it is important that businesses and individuals manage their cash flow carefully and set aside emergency reserves to cushion any unexpected events. ठीक है जी, सो दैट वाज अ वेरी शॉर्ट वीडियो। ये आप बाद में भी देख लीजिए, उसने काफ़ी कुछ कह दिया है। बट कैश फ्लो के साथ जो कैश फ्लो इज़ बेसिकली इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि आपको उसके हवाले से कैश मैनेजमेंट करनी होती है। तो कैश मैनेजमेंट के अंदर क्या है, आप फोरकास्ट करेंगे कितना पैसा आएगा, आप कलेक्ट करेंगे, खर्च करेंगे, और फिर आपको थोड़े से इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसे चाहिए होंगे। ठीक है। अच्छा, एक टर्म जो कैश फ्लो के अंदर आती है उसको कहते हैं कैश फ्लो साइकिल। यानी कि कैश फ्लो साइकिल का मतलब ये है कि आपने, लेट से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने आप कुर्सियाँ ख़रीदते हैं और बेचते हैं। तो आप कुर्सी ख़रीदते हैं लेट से 3,000 की और बेचते हैं 5,000 की। तो जिस दिन आपने 3,000 अपनी जेब से निकाले टू बाय दैट शेयर, उस दिन आपका कैश फ्लो साइकिल स्टार्ट होगी, क्योंकि आपने पैसे दे दिए हैं उस माल के लिए। और जिस दिन आपने वो बेची कुर्सी, फ़र्ज़ करें सारी गर्मियाँ कुर्सी नहीं बिकती और उसके बाद बिकती है, 2 महीने बाद बिकी, तो 2 महीने बाद आपको 5,000 मिले। सो वो जो टाइम लैग है ना उसके दरमियान, दैट इज़ योर कैश फ्लो साइकिल। एंड व्हाट डज इट डू? इट मेजर्स योर कंपनीज लिक्विडिटी। यानी कि जब तक आप वो कुर्सी नहीं बेचेंगे, आपका पैसा फंसा हुआ है, यू आर नॉट लिक्विड। जब आप बेच देंगे तो आपको पैसा आएगा जिसके अंदर आपका प्रॉफिट भी है। इन अदर वर्ड्स, आप जितनी जल्दी आप लिक्विड होंगे या आपकी कैश फ्लो साइकिल जितनी छोटी होगी उतनी आपके लिए बेहतर होगी। लेट मी एक्सप्लेन इट विद अनदर एग्जांपल। फर्ज करें वही कुर्सियां आप, लेट से आप चेयर्स बना रहे हैं, इसकी अपना यूनिवर्सिटी के क्लासों की कुर्सियां बना रहे हैं। ठीक है, तो नस ने आपको ऑर्डर दे दिया कि जी आप 5,000 कुर्सियां बनाएं। ठीक है, अब आप कहते हैं ठीक है, और आपकी कुर्सियां बनाने की आपकी फैक्ट्री है। इन दिस केस आपने कुर्सियां खरीदी नहीं है, आपकी फैक्ट्री है। तो आपने हिसाब लगाया कि 3,000 का आपका लेट से मटेरियल है और 5,000 की आप बेच रहे हैं। अब आप ये सोचें कि वो 3,000 जो है बाय 5,000, 1.5 करोड़ रुपया हो गया, और आप बेचेंगे इसको 2.5 करोड़ का। सो आपने 1 करोड़ रुपया बनाना है, आपका इतना प्रॉफिट है। सो अब आप को डे 1 पे आपको ऑर्डर मिल गया। ठीक है, अब आपको जो ऑर्डर मिला है, आपने ऑर्डर दिया अपने सप्लायर्स को। आपने लकड़ी ऑर्डर की, लोहा ऑर्डर किया, पेच ऑर्डर किए, कपड़ा ऑर्डर किया, गद्दियाँ ऑर्डर की, सारा कुछ ऑर्डर किया फॉर 5,000 चेयर्स। एंड लेट अस अस्यूम कि वो सारा माल जो है 15 दिन में आपके पास आ जाएगा। सो दैट इज़ द सेकेंड थिंग यू सी दैट, 15 दिन। अब जब भी वो आपको माल देंगे तो आपको कहेंगे कि जी ये लें इसका बिल। आप उस सारे माल को का पैसा देने के लिए आपको 25 दिन लग जाते हैं। सो ऑन डे 40 आपका एक्चुअली जो 3 करोड़ रुपया है, सॉरी 1.5 करोड़ रुपया है, वो आपका निकल गया। नाउ यू हैव पेड फॉर ऑल द रॉ मटेरियल दैट यू नीड टू प्रिपेयर दोज 5,000 चेयर्स फॉर नास्ट। ठीक है, सो आपने ऑन द 40th डे आपके पैसे निकल गए हैं। अब आपने फैक्ट्री चला दी और उसके अंदर
आपके ठीक है बाकी खर्चे भी होते रहे, पानी बिजली सिक्योरिटी तनख्वाहें वगैरह वगैरह। अब आपने उन आपको लगा 178 दिन टू प्रिपेयर दोज गुड्स, ठीक है। तो आप अब ये देखें कि आपका 40वें दिन 1.5 करोड़ रुपया आपका लगा है just to buy the raw material, and you have taken another 178 days of expenses to prepare those goods. अब 218th डे पे आप उनको कहते हैं नाश्ताओं के कि जी माल तैयार है, हम कब ले आएं? कहते हैं ठीक है 3 दिन बाद ले आओ। 3 दिन बाद ऑन द 221st डे आप वो जाके गुड्स को डिलीवर करते हैं। जब आप डिलीवर करते हैं तो वो कहेंगे कि जी अच्छा इस स्टोर में रखते हैं, अब हम इंस्पेक्शन करेंगे, फिर वो इंस्पेक्शन करते हैं, एंड देन व्हेन एवरीथिंग इज ओके यू विल सेंड द इनवॉइस फॉर कितना था 2.5 करोड़, ठीक है। आपने इनवॉइस भेज दी, अब आपको फौरन पैसे नहीं मिलेंगे, वो जाएगा किसी डिपार्टमेंट में जाएगा, वो डिपार्टमेंट वाले देखेंगे कि जी अच्छा ये कौन सा प्रोजेक्ट था, बजट में पैसे हैं नहीं हैं, किसके अगेंस्ट किस मद में ये चीज़ें ली गई हैं। सो करते कराते आपको 50 दिन और लगे पैसे निकलवाने। सो 280th डे पे एक्चुअली आपकी जो 1.5 करोड़ रॉ मटेरियल की इन्वेस्टमेंट थी वो बनी 2.5 करोड़, ठीक है। अब उस याद रखें आपके खर्चे भी इसमें से निकलने हैं। हाउएवर आपकी कैश फ्लो साइकिल जो है वो 40th डे से स्टार्ट हुई और 280वें दिन वो ख़त्म हुई, which means 280 minus 40, it took you for this order your cash flow cycle was 240 days. अब आप ये देखें कि अगर आपके पास पैसे ना होते शुरू में लोगों को देने के लिए तो यू वुड हैव हैड कैश फ्लो प्रॉब्लम। इन बिटवीन अगर आपके पास तनख्वाहों के पैसे ना होते यू वुड हैव हैड अ कैश फ्लो प्रॉब्लम, ठीक है। सो यू हैव टू इंश्योर एज एन एंटरप्रेन्योर दैट योर कैश फ्लो इज ऑलवेज इन लाइन, मतलब आपके पास हमेशा कैश फ्लो हो। अब आप सोचें अगर आप तनख्वाहें ना दे सकते होते, कोई लोग नौकरी छोड़ के चले जाते, तो आप गुड्स डिलीवर के आप बना ही ना सकते, कल को आपका नाम बदनाम हो जाता, उधर नर्स के पास कुर्सियाँ ना पहुँचती क्लासों से पहले। दैट इज़ हाउ इम्पोर्टेंट द कैश फ्लो इज, एंड द स्मॉलर योर कैश फ्लो साइकिल द बेटर ऑफ यू आर। अगर ये माल अगर आपको ये 240 डेज को अगर आप 120 डेज किसी तरह कर लें तो देखें आपका 1.5 करोड़ जो है वो 2.5 करोड़ 240 दिन में नहीं होगा, 120 दिन में हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज द कैश फ्लो साइकिल। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू शुड नो, एंड दैट जितनी कम होगी कैश फ्लो साइकिल उतना बेहतर ही आपका कैश फ्लो होगा, ठीक है। तो कैश फ्लो और प्रॉफिट जो है ना उसके अंदर आपको फ़र्क पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट कैश फ्लो इज़ नॉट प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू सरकार जो है ना वो कहती है जिस दिन आप बिल जमा करा देते हैं ना वो आपका रेवेन्यू हो जाता है, चाहे आपको पैसे मिलें या ना मिलें। सो प्रॉफिट जो है कैन बी पेपर प्रॉफिट, whereas cash is actual cash जो आपको मिलता है to use in the business. So entrepreneur जो है has to do everything, has to be a cash finder, has to be a cash planner, distributor, collector and of course a conservator, because आपको पता नहीं है कल आपको कितने कैश की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, next thing what we want to discuss, if you have to plan then you plan by making a cash budget, ठीक है। ये वीडियो आप खुद से देख लीजिएगा, मैं आपको
कैश बजट के हवाले से फिर बताऊं कि जी इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, सो यू गॉट टू मेक अ कैश बजट। सो कैश बजट में आप करते क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको आइडियली स्पीकिंग आपको 1 साल का कैश बजट बनाना चाहिए ऑन अ मंथली बेसिस। और उसमें हाउ डू यू स्टार्ट, आपको ये देखना होता है कि आपको इन ऑर्डर टू सर्वाइव आपको मिनिमम आपकी कैश की रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास कैश महीने के शुरू में कितना होना चाहिए ताकि आपका वो महीना गुजर सके। देन यू डू अ फोरकास्ट कि भाई आप बेचेंगे कितना, फिर देन यू डू अ फोरकास्ट के पैसे कितने आएंगे, देन यू डू अ फोरकास्ट पैसे निकलेंगे कितने। जब वो हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जी एंड ऑफ मंथ आपके पास कितने पैसे रह गए हैं। ये मैं आपको अभी पूरा एग्जांपल करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो याद रखें, कैश एट द बिगिनिंग, कैश कितना आ रहा है, कैश कितना निकल रहा है, और एंडिंग कैश। दिस मैचेस द इनिशियल जो मैंने आपको डेफिनेशन दी थी, मूवमेंट ऑफ कैश इन एंड आउट ऑफ अ बिजनेस। सो अगर हम एक लेट्स से एक सॉफ्टवेयर कंपनी का सोचते हैं, तो इफ़ वी स्टार्ट विद मिनिमम मंथली रिक्वायरमेंट्स, तो आपको एक जगह का रेंट देना होगा। एज फॉर एग्जांपल आपको पानी बिजली गैस के इंटरनेट के आपको पैसे देने होंगे, और अगर आपने कोई शख्स रखा हुआ है तो आपको सैलरी देनी होगी। अगर आपके पास ज़ीरो रेवेन्यू आता है, आपको इन 3 चीज़ों को तो पूरा करना ही करना होगा। सो दिस इज योर मिनिमम मंथली रिक्वायरमेंट, ठीक है। एंड देन यू टोटल इट अप। हाँ, किसी के जहन में है कोई फिगर्स रेंट का, रेंट कितना होना चाहिए? एनीबडी? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000? And जी, somebody come up with a figure. Come on. सर 15,000। 15,000, ओके। और यूटिलिटीज वो कितनी, आप ही बता दें। यूटिलिटीज 30 तक होनी। ओके। और सैलरी, एक बंदा आप कहते हैं कि जी एक हमने सॉफ्टवेयर का, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हमने ज़रूर रखना है, तो स्टार्टिंग पे कितनी देंगे? सर सबकी मिला के या एक बंदे की? नहीं, एक एक की मिनिमम। आप कहते हैं यार कुछ भी ना हो तो हम एक तो बंदा होना चाहिए ना हमारे पास। सर 35 से 40 स्टार्टिंग। ओके, ठीक है, ठीक है। अब सोच में पड़ गए क्योंकि आप लोगों की भी तो तनख्वाहें इन्हीं के साथ एसोसिएटेड होंगी ना। एनीवे, मैंने जस्ट फॉर वेरी सिंप्लिसिटी सेक मैंने इस एग्जांपल के लिए ये फिगर्स डाल दी, ठीक है। रेंट 20,000, यूटिलिटीज 10,000, सैलरी 30,000। इन अदर वर्ड आपके पास हर महीने के शुरू में 60,000 लाजमी होने चाहिए, वरना आपका महीना नहीं गुजरेगा, ठीक है। एंड यू विल हैव अ कैश फ्लो इशू। अगर आप कुछ भी ना करें तो 60,000 तो लाजमी आपके पास होना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स थिंक कि जी आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो आप पैसे किस तरह लेंगे, ठीक है। सो आई मेड सम ऑप्शंस, और याद रखें चूँकि आप लोग सॉफ्टवेयर से एसोसिएटेड हैं, हमेशा डाउन पेमेंट लिया करें, ठीक है। नाउ इन दिस केस आई हैव कम अप विद पेमेंट टर्म जिसमें 30% डाउन पेमेंट है। डिलीवरी मैंने अस्यूम किया है कि हर काम को 1 महीना लगेगा, सो अगले महीने आपको 60% मिल जाएगा। आप बहुत अच्छी हैं, यू आर सो कॉन्फिडेंट ऑफ योर सॉफ्टवेयर। आपने उनको 60 दिन की वारंटी दी है और कहा कि जी आखिरी 10% जो है वो आप 60 दिन बाद दे दें। सो ये आप याद रखें, ठीक है। सो दीज आर
your payment options. And now let us look at the cash budget for 6 months that has been prepared. नॉर्मली मैं क्लास में आपसे ही सारे फिगर्स लेके आप ही की कंपनी बना के आपका कैश बजट करता हूँ, बट ड्यू टू डीएल मोड एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स ये मैंने इन चीज़ों के बेसिस पे आपको ये बना दिया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉप लाइन। अब सेल्स फोरकास्ट इस तरह है कि पहले महीने आपको 50,000 का ऑर्डर मिला, दूसरे में 1 लाख का, फिर 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, एंड देन गर्मियों में ज़रा लेट से आप लोग भी सुस्त हो गए, लोग भी सुस्त हो गए, तो आपके ऑर्डर्स थोड़े से डाउन चले गए। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग यू डू, सो फर्स्ट थिंग यू डू इज यू फोरकास्ट। नेक्स्ट थिंग यू डू इज यू टॉक अबाउट द मूवमेंट इन। सो मूवमेंट इन में आपके पास 50,000 थे, तो आपने 30% डाउन पेमेंट ली, यानी कि आपको 15,000 कैश मिल गए। अब आपको एक ही जॉब मिला है, 15,000, आपने डिलीवरी तो की नहीं है, आपने काम शुरू किया है, सो आपकी टोटल कैश रिसीट्स पहले महीने में 15,000 है। ठीक है, नाउ अब आपने कैश डिसबर्समेंट देखनी है। अगर आपने बंदा हायर किया है तो तनख्वाह आप देखें उससे अगले महीने मिलती है। सो सैलरी की आपकी कोई कैश फ्लो में कैश आउट नहीं है पहले महीने में। रेंट आप पहले देते हैं, सो रेंट चला गया। यूटिलिटीज़ आप बाद में देते हैं अगले महीने। ये जो 3 मैंने रेड में फिगर्स डाले हुए हैं, ये आप देखें कि ये आपका मिनिमम मंथली बैलेंस है इन 3 फिगर्स के ऊपर बेस्ड। ठीक है, अच्छा, अब आपने अगर सॉफ्टवेयर का कोई बंदा रखा है तो आप पीसी परचेज करना होगा आपको लेट से, या लैपटॉप लेना होगा, वो आपको 30,000 का लैपटॉप आपने ख़रीद लिया। ठीक है, तो आपकी टोटल कैश डिसबर्समेंट पहले महीने के अंदर 50,000 होगी। नाउ अब मैं आपको now you do the critical part which is the end of month balance. Now assuming आपने सोचा हो जब हमने 60,000 किया है तो आपने 60,000 रुपया आप दोस्तों ने जमा कर लिया कंपनी के लिए, या आपने अकेले ने कंपनी खोली तो आपने 60,000 शुरू में ही आपने अपने लिए रख लिया होता। सो आपका बिगिनिंग बैलेंस 60,000 है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन अगले महीने आपके पास हमेशा 60,000 होने चाहिए। प्लस कैश रिसीट ये 15,000 हो गई। ठीक, माइनस कैश डिसबर्समेंट्स, क्योंकि इस महीने आपके पास आए सिर्फ 15,000 हैं, खर्चा आपने 50,000 का कर दिया। तो एंड ऑफ द मंथ आपका जो कैश है वो है 25,000। अब महीना ख़त्म हो रहा है, अगला महीना शुरू हो रहा है, तो आपको बोरो करने पड़ेंगे 35,000 टू कम अप विद दैट मिनिमम मंथली बैलेंस। ठीक है, अब आप फर्ज करें आप कर्ज़ा लेते हैं किसी से बगैर सूद के, कोई आपको कर्ज़ा दे देता है और कहता है कि 2 महीने बाद मुझे वापस कर देना। ठीक है, सो इस महीने में आपको 35,000 जो है ये वैल्यू ये आपको बोरो करनी पड़ी। जब बोरो किया तो 25,000 पहले बचे हुए थे, 35 ऐड किया, तो अब आप खुश हो गए कि भाई मेरा अगला महीना कुछ भी ना हुआ तो मेरा अगला महीना गुजर जाएगा, बिल्स विल्स पे हो जाएंगे। अब अगले महीने में देखिए क्या हो रहा है। फरवरी में 1 लाख रुपए का ऑर्डर आ गया। उस ऑर्डर के अगेंस्ट आपको 30% डाउन पेमेंट मिल गई 30,000। इसी महीने में आपने पिछला ऑर्डर भी पूरा कर दिया और उसकी 60% डाउन पेमेंट, उसकी 60% पेमेंट जो 30,000 आ गई। सो इस महीने में आपके पास 60,000 रुपये आ गए। ठीक है, और जहाँ कैश डिसबर्समेंट्स की बात आई तो आपकी सैलरी हो गई, रेंट गया, यूटिलिटीज़ गई, और फिलहाल कोई और ख़र्चा नहीं है।
तो आपका इत्तेफाक से देखें कि आपकी टोटल कैश डिसबर्समेंट्स भी 60,000 हुई, और जब आप एंड ऑफ मंथ बैलेंस पे जाते हैं तो एवरीथिंग इज 60-60, यानी कि आपके पास शुरू में 60 था, आपके पास 60 आए और 60 खर्च हो गए, तो 60 ही बच गए। दिस मंथ यू डू नॉट हैव टू बोरो एनीथिंग, दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो आपने कोई बोरिंग नहीं की। अब आप तीसरे महीने पे आ जाए, मार्च पे। मार्च में आपकी माशाल्लाह आपको 1.5 लाख का ऑर्डर मिला। जब आपको 1.5 लाख का ऑर्डर मिला तो आपकी डाउन पेमेंट होगी 45,000, और आपको जो पिछला लाख का ऑर्डर था जो आपने डिलीवर किया, आपको 60,000 वहाँ से मिल गया। सो नाउ योर कलेक्शन इज नाउ 1,05,000, और आपके खर्चे जो हैं वो आप इसको इस तरह देखें कि अब चूँकि जॉब ज़्यादा आनी शुरू हो गए हैं, तो पिछले महीने की सैलरी गई, रेंट गया, यूटिलिटीज़ गई, और आप कहते हैं कि भाई अब हमने एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर रख लेंगे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपने रख लिया और उसके लिए आपको पीसी लेना पड़ा 30,000 का, ठीक है। और इन द मेन टाइम जो आपने 35,000 का कर्जा लिया था जनवरी में, वो भी आपको मार्च में वापस करना है, वो आपने वापस कर दिया 35,000। सो ऊपर से बड़ा अच्छा महीना लग रहा है, लेकिन नीचे कैश फ्लो की सिचुएशन थोड़ी फ़र्क है। आपका 1,05,000 आया और 1,25,000 गया। 60 आपके पास शुरू में थे, 1,05,000 आया, 1,25,000 गया, आपके पास हाथ में रह गए 40,000, विच मीन्स आपको इस महीने 20,000 बोरो करने पड़ रहे हैं। आपने 20,000 बोरो किए, आपका 60,000 हो गया। अब आप अप्रैल में आ गए। अप्रैल में आपने 2 लाख की सेल की, बड़ा अच्छा, 2 लाख के ऑर्डर आ गए, तो और ही गुड हो गया जिस तरह कहते हैं। तो डाउन पेमेंट आपकी 30%, 60,000। मंथ 2 में मतलब जो आपको पिछला ऑर्डर था 1.5 लाख का, उसके 90,000 आए। और ये याद रखें, जो आपने सबसे पहला ऑर्डर लिया था उसकी वारंटी पूरी हो गई है, तो आपको 5,000 उसका भी आ गया, ठीक है। सो नाउ यू हैव रिसीव्ड 1,55,000 रुपीज़, और जो कैश आउट है उसके अंदर आपने जो बंदा हायर किया था उसके 60,000, मतलब 2 तनख्वाहें होगी। आपने रेंट वही चल रहा है। अब आपकी यूटिलिटीज़ भी बढ़ जाएंगी, बिकॉज अभी आप अप्रैल में आ रहे हैं, पंखे चलने शुरू हो गए, ज़रा दो दो सॉफ्टवेयर के लोग हो गए, ठीक है, और लोगों ने which is in terms of orders the best month. By the way, ये मैंने रैंडम फिगर्स लिए थे और ये खुद ही निकलता है। तो डाउन पेमेंट 75, और ये जो पिछला ऑर्डर था उसका आपका 1,20,000, और जो फरवरी का ऑर्डर था उसका 5%, 10% जो आखिरी था वो आ गया। So now you have a whopping 2,05,000 in cash coming to you, और खर्चा वही है। सिर्फ इस महीने आपका जो आपने जो लोन लिया था, ठीक है, वो ये आपने वापस किया, और मैं ये देख रहा हूँ कि जी ये यहाँ चूँकि ऑर्डर्स बहुत आ रहे हैं, आपने एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर कर दिया, ठीक है, और उसका जो पीसी है आप ज़रा वो महंगा आया है इस दफ़े। सो अगर आप हिसाब लगाएं, खर्चे बहुत हो रहे हैं लेकिन पैसा भी आ रहा है। सो 60,000 से स्टार्ट किया, 2,05,000, 1,55,000, और now your cash at the end of the month is more than 60,000, 1,10,000 है, और now you are cash positive।
सो मई के अंदर आप टोटली मतलब कैश पॉजिटिव हो गए हैं कि आपके पास स्पेयर पैसे हैं। नाउ यू लुक एट जून, और जून में यही करते करते ऑर्डर कम का आया है लेकिन आपके पीछे के पैसे आ रहे हैं। सो यू मेकिंग 195 and you're spending 135. So you're actually adding to your cash flow despite the fact कि आपकी sales कम हुई हैं. And you end up with 170 in cash. And similarly in July, चाहे आपका 50,000 सिर्फ ऑर्डर आया लेकिन जो पिछले ऑर्डर्स हैं उन्होंने आपको फ्लोट रखा है. So for these 6 months, despite the fact that your sales are going down, your cash flow is looking good. तो जब आप अगले 6 महीने का प्लान करेंगे, यू विल देन प्लान अकॉर्डिंगली कि आपने क्या करना है. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ कैश बजट जो कि आपको बनाना आना चाहिए और आपको इसके ऊपर टेस्ट किया जाएगा. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप शुरू में डरे ना कि भाई ये देखो ये हमें बोरिंग करनी पड़ रही है. जब आप 6 महीने का प्लान करते हैं या साल का, तो आपको जो सिचुएशन है काफ़ी क्लियर नज़र आती है. ठीक है, ओके. देयर आर द बिग 3 इन कैश फ्लो, यानी कि कैश फ्लो पे किन 3 चीज़ों से ज़्यादा असर होता है, फ़र्क पड़ता है. अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि अगर आपको किसी ने पैसे देने हैं और वो दे नहीं तो आपका अकाउंट रिसीवेबल, आपका जो कैश फ्लो है उसका पट्टा बैठ जाएगा. एंड मोस्टली इन केसेस होता ही है कि आप उस कंपनी को समझ नहीं पाते कि भाई उनके रूल्स क्या हैं. उनके रूल्स फॉलो करें, पेपर वर्क ठीक करें, आपको फिर भी पैसे मिल जाएंगे. अकाउंट्स पेएबल, यानी कि अगर आप पैसे नहीं देते तो आपके पास कैश रहता है. ठीक है. नाउ प्लीज़ रिमेंबर, जितना आप डिले करते हैं आपके पास कैश तो रहता है लेकिन आपकी रेपुटेशन भी ख़राब होती है. So you have to strike this balance. And lastly, inventory. अगर आपके पास ज़्यादा लेट से कुर्सियाँ एक्स्ट्रा आपने बना ली थी और बिक नहीं रही तो आपका कैश फंस गया उसके अंदर. तो जितना टर्नओवर अच्छा होगा, जल्दी होगा, उतना आपके लिए अच्छा होगा. सो दीज आर, ये उसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप देख लें. एंड दैट ends the lecture on cash flow. So tomorrow we will start with asking for money. Okay?